आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी संस्था की तरफ से सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई खेलकूद के लिए हमेशा तैयार किया जाता है। आज वसंत पंचमी का दिन है, तो हम चाहेंगे सभी बच्चे माता सरस्वती का ध्यान करें। और आज साथ में राजा सुहेल देव जो कि महाराजा थे, इनके बारे में संपूर्ण इतिहास नहीं मिलता है अतीत में जाने पर, लेकिन इनका विवरण दो बार होता है। एक बार 17वीं सदी में, जिसमें औरंगजेब का समय था, और एक बार 11वीं सदी में। तो महाराजा सूरवीर हमारे देश के तमाम ऐसे महाराजा हैं जिनके बारे में पूर्ण जीवन परिचय नहीं मिलता है, और हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से महाराज हैं। तो फिलहाल जिन जो तथ्य मिले हैं उसके हिसाब से राजा सुहेल देव बहुत ही दानवीर थे, शूरवीर थे, और इन्होंने घायल मराठों को अपने किले में 10 लाख रुपए की मदद की, उन्हें महीनों भर भोजन कराया, उनका इलाज किए जाते समय उन्हें धन की भी आर्थिक मदद की, और तमाम बड़े बड़े 80 युद्धों को इन्होंने जीता था। तो आज ऐसे सूरवीर का की जयंती है, जिसको योगी सरकार और मोदी सरकार, ये दोनों लोग मिल करके पूरे देश में जो है धूमधाम से मना रहे हैं। तो हमारी संस्था से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Good morning, my dear student, respected manager sir, principal and teachers. I am very glad to hear to find the chance to say something about some historical event before you. First of all, I congratulate all of you on this holy occasion of Hindu religions, Basant Panchami. As we know that today entire country is celebrating two occasion. First is Basant Panchami and second is the birth anniversary of King Suhel Dev. So I want to focus some area belong to Suhel Dev. Suhel Dev was a prominent king of Sravasti that present time falls in Uttar Pradesh near Bahraich. He was the eldest son of Mordhaj, King Mordhaj of Sravasti. In historical event, if we care about the history, know more about history about Suhel Dev is given in the book, but some legend occur, some books that give the information about the Suhel Dev. Suhel Dev was belong to 11th century and famous only for the popularly defeating and killing the invader, Muslim invader on India, that is Ghazi, that is called Ghazi. First invader of India, Mahmud Ghazni, invade India along with his nephew. He conquered Multan, Delhi, Punjab and came to Uttar Pradesh. At last, Satri, he want to stay some time for the Satri, and he ordered to his commander to control the some neighbor Hindu king around this location. After dispatching the army won more places, but the king of Sravasti, Suhel Dev, on the help of many king,
They formed the Confederation of the Kings, means Alliance of the Kings, about 20 to 22 king, and fought against the Ghazi. And finally, the Alliance of King, in the leadership of Suhel Dev, killed the Ghazi and make the graveyard into Bahraj. But a biography written by Abdur Rahman, a poet of Mughal Emperor Jahangir, a biography of Suhel Dev, illuminate more about Suhel Dev and Ghazi. Finally converted into Dargah, and present time Hindu religions, Muslim and all the religious peoples come to Dargah in Bahraj and respect the holy murder of the Ghazi. So we should respect and proud of the work of the King Suhel Dev, who make the large alliance of the king to defeat the foreigner. At this time, the step of the Ghazni break down by obstructing the Suhel Dev. So Suhel Dev play an important role to control the Muslim invader and make the kingdom powerful. He was very brave, courageous, and clever to make the alliance to defeat the opponent. So entire country today pays tribute to King Suhel Dev, and we all are Indian, proud over him. And second occasion, second festival is Basant Panchami. Mainly this is the festival of Hindu religion that celebrate to this goddess. There are many goddess and goddesses in Hindu religion. Among them, one is the goddess Saraswati, and popularly known as through giver of the wisdom and intellectual and purity, Ma Saraswati. You can see the dress of the Ma Saraswati in white color, forehand, and all equipped with one stationery, one hand garland, rudraksh, and with two hand veeda, which help to so goddess Saraswati. White uniform show the purity of the place. When we translate the uniform in our sense, white dress tell us about the purity of the nation. Its stationery give us knowledge, and I pray, we all pray to goddess to provide us knowledge, especially student. Goddess Saraswati is known as the goddess of wisdom, and every school, before starting any program or class, teachers and student pray to Goddess Saraswati, and hope to that Ma Saraswati provide of us knowledge and wisdom.
all of you say something about Goddess Saraswati. At last, I want to tell you, we should take, we should wish, we should pray, worship to Goddess Saraswati that she provide all of us knowledge and intellectual to wear the blue of entire country. So at last I want to conclude my speech and want to give you the chance. All of you are you waiting to say something about this? So at last I congratulate all of you on both occasions. Vasant Panchami is the birth anniversary of my goddess Saraswati and birth anniversary of King Suhel Dev. Thank you. पूरे देश के कोने कोने का ये गौरव बढ़ाने वाले अवसर है। हर हिंदुस्तानी को अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी महापुरुष, उनकी वीरता का पुनः स्मरण कराने का एक पुण्य कार्य आज यहां हुआ है। महाराजा सुहेल देव की शौर्य गाथा, देश के लिए उनके योगदान को नमन करते हुए थोड़ी देर पहले उनकी स्मृति में पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है। 5 रुपए की कीमत का ये डाक टिकट लाखों की संख्या में देश भर के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के घर घर पहुंचने वाला है। महाराजा सुहेल देव को, उनके महान कार्यों को हिंदुस्तान के हर कोने में, हर घर में पहुंचाने का एक नम्र प्रयास इस पोस्टल स्टैंप के माध्यम से होने वाला है। साथियों, महाराजा सुहेल देव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेल देव जैसे नायक, जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। ऐसा कहते हैं कि जब महाराज सुहेल देव का राज था तो लोग घरों में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं समझते थे। अपने शासन में उन्होंने लोगों के जीवन को आसान बनाने, गरीबों को सशक्त करने के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सड़कें बनवाई, बगीचे लगवाए, पाठशालाएं खुलवाई, मंदिरों की स्थापना की और अपने राज्य को बहुत ही सुंदर रूप दिया। जब विदेशी आक्रांता ने भारत भूमि पर आंख उठाई तो महाराजा सुहेल देव उन महावीरों में थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने आसपास के अन्य राजाओं को जोड़कर ऐसी संगठन शक्ति उत्पन्न की कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाए। महाराजा सुहेल देव का जीवन एक बेहतरीन योद्धा, कुशल रणनीतिकार, संगठन शक्ति के निर्माता, ऐसी अनेक प्रेरणा की वे मूर्ति रहे हैं। वो सबको साथ लेकर चलते थे। महाराजा सुहेल देव सबके थे। भाइयों बहनों, देश के ऐसे वीर वीरांगनाओं को जिन्हें पहले की सरकारों ने
एक प्रकार से भूला दिया, मान नहीं दिया, उनको नमन करना ये हमारी सरकार ने अपना दायित्व समझा है, हमने हमारी जिम्मेवारी समझी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में चितौरा, जब भी हम महाराजा सुहेलदेव को याद करते हैं तो बहराइच जनपद के चितौरा को कभी भूल नहीं सकते। वही धरती थी जहां महाराजा ने आक्रांताओं को समाप्त किया था, परास्त किया था। योगी जी की सरकार ने उस स्थान पर जहां महाराजा सुहेलदेव ने भव्य विजय प्राप्त किया था और जिस महापुरुष को 1000 साल तक भुला दिया गया था, उनके स्मारक में उस विजय को याद करें आने वाली पीढ़ियां, इसके लिए एक भव्य स्मारक बनाने का भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को राजा सुहेलदेव के स्मारक के लिए, इस कल्पना के लिए, इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं और महाराजा सुहेलदेव से प्रेरणा लेने वाले हर किसी को देश के कोने कोने में प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का दृढ़ निश्चय है कि जिन्होंने भी भारत की रक्षा, सुरक्षा, भारत के सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने में योगदान दिया है, उनकी स्मृति को मिटने नहीं दिया जाएगा। अपने इतिहास, अपनी पुरातन संस्कृति के स्वर्णिम पृष्ठों पर धूल जमने नहीं दी जाएगी। साथियों, महाराज सुहेलदेव जितने बड़े वीर थे, उतने ही बड़े दयालु और संवेदनशील थे। संवेदनशीलता के यही संस्कार हम सरकार में, व्यवस्था में लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। केंद्र और यूपी सरकार पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कर रही है कि गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, हर प्रकार से समाज का ये तबका सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, अपने हकों को पाकर के रहे, ये सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं। उनकी आवाज व्यवस्था तक आसानी से पहुंचे,